today's our topic is digital documentation, create and apply style in documentation. So this is a theory part, style category in word processor. These practical we will perform in Apache OpenOffice. First we understood that what is a style. So I am sharing the screen. These are three applications: Office, OpenOffice and LibreOffice. We will work in OpenOffice. These three apps are similar. So our topic is create and apply styles in the document. Now what is a style? Styles or style set are predefined or customized option used for creating good looking professional documents with less of efforts. We can find a number of style available within word processor that can be applied to a document. This style is available in MS Word, OpenOffice and LibreOffice. Talk about the styles and category in word processor. In the word processor like OpenOffice, a style is a set of text formatting characteristics such as font size, color and alignment. For example, a user could select the heading 1 style to make the text larger, blue and bold, all without having to apply each of different formatting characteristics individually. Also the style can be adjusted at the time, which means if we have several heading 1 type page in our document, modifying the style change the look of all your headings automatically. What is the mean of this? You create any heading and apply any style of any text. So you can apply different kind of headings on same text. OpenOffice Writer have 5 types of style. First is paragraph style, affect an entire paragraph. Character style affect a block of text inside a paragraph. Page style affect a page formatting, page size, margin and the like. Frame style affect frame and graphics. List style affect numbered list and bullet list. This is the style window of OpenOffice. So there are paragraph style, character style, frame style, page style, list style, and this is option like a format painter. So you can select any style and paint any text as a related to selected style. And this is the create a practical. First is list style categories. Select list from the style and formatting window, यानी लिस्ट स्टाइल्स जो है वो अप्लाई करनी है या जो भी कैटेगरी है लिस्ट की, ठीक है. तो एक बार हम let's move to OpenOffice. There are various applications. For example, we work on text document. This is our OpenOffice. OpenOffice की स्क्रीन है, ओपन राइटर. यहाँ पर एक आइकन आपको दिखेगा. दिस इज स्टाइल फॉर्मेटिंग. इफ यू प्रेस F11 ऑफ फंक्शन कीज, ठीक है. तो अब देखिए आपको क्या करना है. जैसे आपने कोई टेक्स्ट, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम व्हाट इज द स्टाइल. तो यू कैन सी एक टैब है यहाँ पर. जैसे आप माउस कर्सर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट में, और दीज आर द हेडिंग स्टाइल. फर्स्ट इफ यू क्लिक हेडिंग 1, तो इट विल बी the heading 1 automatically apply on this text. If you click heading 2, so it will apply also. You can see changes. So unmute your microphones and ask me. Okay, so this is heading 3. So these are all are the headings. So in our practical, first is how to apply style sheet. तो ये तो था कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, ओपन ऑफिस में. After the open office, you can open Word, and there are in formatting tool style tab already available. So you can directly click and apply style. I will this example. So how can you change the style? So I click on this icon and we have style formatting. This is the icon. First is paragraph style, second is character set, third is frame style set, page style and list style. So there are all style are available. So first we know that how can you add a new style in this tab. I want to a new style जो कि इस टैब में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टाइल क्रिएट करते हैं. I select the different font certificate and I increase the size of text 28, ठीक है. Now I want to create a new heading. So I go to this icon
new style from selection, click on new style from selection. Now I type the name of new style, my style. Okay, click on OK. So you can see this name added in this style sheet. If I want to type another text, I can apply different style, and if I want to apply again my style, so I click on my style new, so it will apply. So this way we can create a new style. ठीक है, अब स्टाइल क्रिएट करने का फर्स्ट वे तो हो गया ये. सेकंड वे इज यू कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप द स्टाइल. कैसे? जैसे दिस इज माय न्यू स्टाइल, ये आपकी एक न्यू स्टाइल है. ठीक है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर एक डिफरेंट फ़ॉन्ट दिया, फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक, एंड साइज हमने और इंक्रीज कर दी 44. सो दिस इज आवर स्टाइल. अब यू कैन सेलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग. यहाँ पर आप पैराग्राफ की जो टैब है यहाँ तक ड्रैग करें, और जैसे ही यू कैन फ्री द माउस कर्सर, तो इट विल ओपन ए टैब. देयर यू कैन ऐड ए न्यू स्टाइल. आई टाइप स्टाइल एंड क्लिक ओके. यू कैन सी दैट स्टाइल 02 इज एडेड इन दिस टैब. यानी कि स्टाइल 02 जो है हमने कहाँ ऐड कर लिया है, इस पैराग्राफ स्टाइल टैब के अंदर. ठीक है, ये दो तरीके हैं इससे हम यहाँ पर स्टाइल ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट इज यू कैन सेलेक्ट एंड गो टू दिस आइकन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन. यानी कि किसी भी सिलेक्शन से आप क्या कर सकते हैं कि स्टाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. सेकंड वे इज सेलेक्ट एंड ड्रैग ऑन टू दिस टैब. यानी कि जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे इस विंडो के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा आपको. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब वो जो टेक्स्ट था कि वंस इफ़ यू क्रिएट ए हेडिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने हेडिंग 1 क्रिएट कर ली. ठीक है, जैसे हमने ये वाली हेडिंग क्रिएट की, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो. यू कैन मॉडिफाई. कैसे? आपने क्या किया, आपकी जो माई स्टाइल है यहाँ गए और राइट क्लिक किया, इस पर मॉडिफाई पे क्लिक किया. ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी, यू कैन चेंज योर स्टाइल नेम आल्सो, और जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो दूसरी तरह की, किससे आप लिंक करना चाह रहे हो. ठीक है, किसी भी तरह की स्टाइल से आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो. और दूसरा कैटेगरी क्या, जो भी कैटेगरी आपको इसमें चाहिए, HTML स्टाइल चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, इंडेक्स चाहिए, जिस भी तरह की स्टाइल से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज इंडेंट. यानी कि इंडेंट स्पेस भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो. एंड अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल आई सेट सेंटर, तो मैंने यहाँ सेंटर पे क्लिक किया और ओके. तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी हेडिंग्स है उस ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, उसको सेंटर में कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं विथ 2 वेज. हमारे पास 2 ऑप्शन है क्रिएट करने के. फर्स्ट इज क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन. सेकंड इज यू कैन ड्रैग डायरेक्टली योर स्टाइल इनटू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थर्ड इज यू कैन मॉडिफाई योर स्टाइल. फॉर एग्जांपल यू क्लिक ऑन योर स्टाइल, राइट क्लिक ऑन मॉडिफाई. ठीक है, मॉडिफाई क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने राइट में करना है तो यू कैन क्लिक ऑन राइट ऑप्शन एंड क्लिक ओके. आपने क्या किया, ये राइट में कर दिया. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहीं पर स्टाइल क्रिएट कर ली. बट देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस अपाचे ऑफिस. यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी. हेडिंग वी आर क्रिएटेड, दिस हेडिंग ऑलरेडी सेव इन दिस फाइल ओनली. यानी कि इसी फाइल में ये सेव रहेगी. इफ आई ओपन ए न्यू फाइल, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टाइल. यानी कि ये जो स्टाइल है हमारी स्टाइल 02 एंड माई स्टाइल न्यू, ये हमें नए फाइल में नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल आई सेव दिस फाइल. मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और हम इसे सेव करते हैं temp1 के नाम से. ठीक है, हम इसे temp1 के नाम से सेव कर देते हैं. देखिए इन ऑफिस यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या मिलता है, ODF. ठीक है, बट यू कैन चेंज दिस एक्सटेंशन नेम
related these. For example, if you want to save as an office document, so you can select Microsoft Word 97/2000/xp.doc. If you want to create Microsoft 95, so you can select this option, but here select ODF. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया. नाउ आई क्लोज दिस फाइल. मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और हमने वापस से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया. ठीक है, तो यू कैन सी दैट हमने जो स्टाइल क्रिएट की थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी तक, बट वी नीड दिस स्टाइल. हमें वो स्टाइल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टाइल दिस लोड फ्रॉम अदर सोर्स और अदर एक्सटर्नल फाइल. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड वी क्लिक ऑन थर्ड ऑप्शन, लोड स्टाइल. इस विंडो में यू कैन सी इन दिस विंडो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन लोड स्टाइल फ्रॉम आवर प्रीवियस फाइल. तो क्लिक ऑन फ्रॉम फाइल. तो हमारी फाइल का नेम क्या था, temp1.odt. जैसे मैंने इस फाइल पे क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पर स्टाइल 02 अवेलेबल है, माई स्टाइल न्यू अवेलेबल है. यानी कि हमने इन दोनों स्टाइल्स को प्रीवियस डॉक्यूमेंट से क्या कर लिया, ऐड कर लिया. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कि वी कैन लोड स्टाइल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल फाइल आल्सो. यानी कि हम इस तरीके से जो लिस्ट की स्टाइल, ये जो स्टाइल शीट्स हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए, स्टाइल सेट जो है वो हम किसी अदर फाइल से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड. अब यहाँ पर हमने कोई एक स्टाइल सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट स्टाइल 02. सबसे पहले स्टाइल सेलेक्ट कर लें. आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन फिल फॉर्मेट मोड. यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें. अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे या इससे क्लिक करेंगे इस पर, तो ये स्टाइल ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगी इस पर. ठीक है, यू कैन सी, ये देखिए ये स्टाइल ऑलरेडी अप्लाई हो गई. इफ आई वांट टू अप्लाई अनदर हेड स्टाइल, सो आई क्लिक ऑन हेडिंग 10 एंड नाउ आई क्लिक ऑन दिस. तो ये देखिए दिस इज हेडिंग 10. यू कैन सी हेडिंग 10 एरियल 10.0.5. सो दिस इज द फिल ऑप्शन, फिल मोड. यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर कोई भी हेडिंग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अब इसका यूज़ क्या होता है, यूटिलिटी क्या है, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट है. ठीक है, ये हमारे पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट है. अब यू वांट टू अप्लाई डिफरेंट हेडिंग्स. तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्लिक ऑन हेडिंग 1. तो यहाँ से फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया. अब यहाँ पे हमें हेडिंग 1 अप्लाई करनी है, तो हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई माई स्टाइल न्यू, देखिए यू कैन क्लिक, ये देखिए यहाँ पर माई स्टाइल ऑटोमेटिकली ऐड हो गई. ठीक है.